So one of the challenge in your preparation was you decided to join the institute in January of this year, right? Yes, sir. And your exam was scheduled in March of 2025 this year. So there was very little time, approximately I think one One to and a two half. months. Yes, sir. Yeah. So in this short time, what made you choose us or made you choose the coaching? Okay, so like most of the student in this short period of time, they usually don't decide. Most of the time they give up कि खुद से मतलब नहीं हो पाएगा इतने कम समय में. Yes, sir. बट व्हाट वाज द फैक्टर कि तुमने सोचा कि नहीं मैं करूंगा ही. हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ अमीश वर्मा हैं जो मेरिट जोन में इन्होंने पढ़ाई करी थी, सीयूटी पीजी एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और अभी इनका सिलेक्शन हो गया है. कई सारे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये सिलेक्ट हुए हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई कैंपस में भी इनका सिलेक्शन हुआ है. तो आज इनसे ही बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को किया और मेरिट जोन का क्या रोल था इनके प्रिपरेशन में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, अमीश. sir. Thank you, sir. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए, है ना, और आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ इसके बारे में बताइए. Hello, everyone. My name is Amish Verma. I am a resident of Ghaziabad, Uttar Pradesh. I have completed my schooling, both metric and 12th grade, from Presidium Indrapuram. For my bachelor's level course, I have pursued BA program in Sociology and English at Shivaji College in Delhi University. Now, coming forward for my post graduation, I approached Sir and his institute, Merit Zone Education, and they have guided me and helped me to get enrolled in Tata Institute of Social Sciences as well as Delhi University for MSW. So Amish, why did you decided to prepare for CUT PG Sir, exam? to be honest, from very young age, I was always interested in studying and education. I have completed my bachelor's and wanted to pursue a higher level academic degree in the field of the social sciences, especially sociology or social work. The best option for that was the CUET PG entrance exam, Yes. and for that I have approached sir and he guided me. So third question is, how did you came to know about merit job? Sir, to be very honest, I was going through my mobile phone on the Google app and the ratings and just going through which institutes offered the particular courses which I was interested in as well as their ratings. And to be quite frank, there were very little institutes in all of the Delhi NCR which help us in preparing for developmental studies or social work or sociology. Sir's Institute was one of them, as well as it was also very highly rated and reputed for multiple different entrance exams. So I approached Merit Zone Education. So one of the challenge in your preparation was you decided to join the institute in January of this year, right? Yes, sir. And your exam was scheduled in March of 2025 this year. So there was very little time, approximately I think one to and a two half. months. Yes, Yeah. So in this short time, what made you choose us or made you choose the coaching? Okay, so like most of the student in this short period of time, they usually don't decide. Most of the time they give up कि खुद से मतलब नहीं हो पाएगा इतने कम समय में. Yes, sir. बट व्हाट वाज द फैक्टर कि तुमने सोचा कि नहीं मैं करूंगा ही. सर, सबसे पहले तो फर्स्ट रीज़न तो यही था कि मेरे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं सीयूईटी पीजी क्रैक कर सकता हूँ. मैं ऑलरेडी सोशियोलॉजी पढ़ चुका हूँ. बात इतनी थी कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लाइक एमएसडब्ल्यू नॉट ओनली रिक्वायर सोशियोलॉजी बट दे ऑल्सो रिक्वायर कंपोनेंट्स लाइक फिलोसफी, political theory, history, economics, developmental economics, and all of these multidisciplinary aspects of the subjects. अब 1.5 मंथ्स की सर प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल था. मैंने सोचा कि ड्यू टू द एनईपी 2022 आई आल्सो हैड द ऑप्शन टू परस्यू फॉर अ फोर्थ ईयर. जो आपको पहले यही था कि एक बार अटेम्प्ट दे देंगे, देख लेंगे कैसा होता है, उसके बाद फोर्थ ईयर में जाके फिर से सर के साथ प्रिपरेशन करनी है. बट फॉर्चुनेटली टचवुड मेरा 1.5 मंथ्स में ही मैंने किया और सर के कोर्स के थ्रू फैकल्टी मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल्स उसके हेल्प की वजह से मेरा इस बार में ही आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम. You discuss about the faculty and study material and mock test. So what role did they play in your preparation and your selection? Sir, most importantly, the faculty available at Merit Zone Institution is unparalleled. Whether it is for philosophy, whether it's for psychology, law component, environmental studies, and I can say this as I was a student for a multidisciplinary course. So I needed guidance, mentorship, and education teaching from many different professors and many different teachers, and all of them were very helpful and were very qualified. They all explained things to me very clearly, and I never felt that there was a gap between me and the teacher or there was ever a backlog, because sir always checked in with us
कि हाउ मेनी नोट्स हैव यू मेड टुडे। अगर हम ऐसा कर देते थे कि सर कहते शॉर्ट नोट्स बना लेने आज, और हम बनाते नहीं, तो सर कहते व्हाट्सएप पे आप फोटो भेजिए शॉर्ट नोट्स की। तो उस मामले सर स्ट्रिक्ट भी हैं, बट वो हमारे उसके लिए ही है। तो तुम्हारे प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट रहा? क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट? सर सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट थे, बिकॉज जो फाइनल टच आता है प्रिपरेशन में, जैसे कि सर ने और अदर टीचर्स थे, मैम्स थी हमारे साथ बहुत सारे, हमारी एजुकेशन का जो कंपोनेंट है, टीचिंग कंपोनेंट, क्लासरूम कंपोनेंट, वो हो चुका था। बट ड्यू टू सम रीजन, आपको पता तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो मैं उसका इंस्टीट्यूट आ नहीं पा रहा था। तो बेसिकली सर हुक्ड मी अप विद दिस मॉक टेस्ट्स एवरी डे। आई यूज्ड टू सॉल्व 2 और 3 ऑफ दिस मॉक टेस्ट। सो उससे ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स कर रखे हैं वो तो अपने आप कवर्ड है, और सर के पास टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ कंपोनेंट इन एमएसडब्ल्यू फॉर पॉलिटिकल कंपोनेंट, हिस्ट्री कंपोनेंट, इकोनॉमिक कंपोनेंट। सर के पास होलिस्टिकली जो ओवरऑल पूरे एमएसडब्ल्यू के लास्ट ईयर पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स थे ही, बट पर कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मेरा कंपोनेंट डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक था, बिकॉज आई वाज वीक इन मैथमेटिक्स। एंड इकोनॉमिक्स? तो हेरिड ओवर मॉडल ग्रोथ एंड सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ में सर ने उसके लिए अलग से मेरे को मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए थे, और उसकी वजह से मेरी इतने रिगरस तरीके से हमने उनको अटेम्प्ट किया वो क्या, तो जो लास्ट फाइनल डेज में जो कुछ भी अगर कोई लिमिटेशन या कोई ड्रॉबैक्स थे तो वो भी क्लियर हो गए, अंडरस्टैंडिंग उसकी भी बेटर हो गई। अच्छा, एग्जाम आपने एमएसडब्ल्यू का भी दिया, सोशोलॉजी का भी दिया, राइट? हाँ सर। तो जो हमने पढ़ाया क्लास में, या जो स्टडी मटेरियल्स में कंटेंट थे या मॉक टेस्ट में थे, उससे कितना एग्जाम में क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली? सर एमएसडब्ल्यू के पेपर में तो मैं बोल ही सकता हूँ कि 75 में से ऑलमोस्ट 73-75 क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाए थे वो याद है। इनफैक्ट जब मेरा पेपर हुआ था, मैं सर को कॉल करके कहा था कि बिल्कुल। सर 73 क्वेश्चन सही हो गए हैं, अगर सर को याद होगा तो। बिल्कुल। तो तो क्वेश्चंस जो सीयूटी पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत आसान भी नहीं होते और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होते। द मेन चीज़ है कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें और सही तरीके से पढ़ें, मॉक टेस्ट सही से दें और मॉक टेस्ट को एनालाइज सही से करें, है ना? सभी के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि आप बहुत लंबे नोट्स को ना एग्जाम के लिए याद नहीं रख सकते। तो छोटे छोटे नोट्स बनाना और किस तरह से कॉन्सेप्ट को लिंक करके पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम की अच्छी रिजल्ट लाने के लिए। डेफिनेटली सो अमीस, आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी का या फिर एमएसडब्ल्यू का, डेवलपमेंटल स्टडीज के उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले कैसे तो पढ़ाई फ्यूचर करें? एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें घबराना नहीं है। जैसे कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के उसमें आते हैं तो एक हमारा मेंटल क्लॉक बन जाता है, एक प्रेशर आ जाता है, ये प्रेशर ही हमें ले डूबता है अंत में। तो आप किसी भी चीज़ को टैकल कर रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले तो सिलेबस के थ्रू गो थ्रू कीजिए कि आपके कंपोनेंट्स क्या हैं, आपको उसमें से कितना आता है। मैं अपनी प्रिपरेशन का आपको बताऊं तो मेरे को सोशल कंपोनेंट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ ही आता था, जो एक दो चीज़ें नहीं थी तो सर ने हेल्प की उसमें भी। बट वैसे जो अब आप देखिए, जो आपको कंपोनेंट्स नहीं है उसके लिए आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे सर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इतनी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है, तो इनसे जैसे हम गाइडेंस लेंगे तो उसमें हेल्प रहेगी। और मैं तो आपको पर्सनली दिल्ली एनसीआर ऑल ओवर ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरिट जोन एजुकेशन दैट्स आईएएस एक बार जरूर आके कंसल्ट करिएगा सर से। मेन चैलेंजेस क्या होता है स्टूडेंट की, जो जैसे डेवलपमेंट स्टडी है या फिर एमएसडब्ल्यू है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, और इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, ऑल्दो एमएसडब्ल्यू के एंट्रेंस एग्जाम में सोशोलॉजी का अच्छा वेटेज होता है, 40%। पर सोशोलॉजी के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, साइकोलॉजी के आते हैं, लीगल कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो इसकी वजह से अब कोई स्टूडेंट ऐसा कोई ग्रेजुएशन कोर्स तो नहीं है कि जिसमें साइकोलॉजी भी पढ़ रहा है बच्चा, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, पॉलिटी भी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, सोशोलॉजी भी पढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें अपने प्रिपरेशन में इन सभी तरह की चीज़ों को तैयार करना होता है, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ऑल्दो अगर आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में या सोशल साइंस में बात करें, तो साइकोलॉजी हो गया या फिर सोशोलॉजी हो गया, इन दोनों का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि सोशोलॉजी काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और चाहे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट देखे या करियर ऑप्शंस देखे, सोशोलॉजी का काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप सोशोलॉजी या इनसे रिलेटेड फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, और नोट्स बनाइए, टेस्ट दीजिए, है ना? और अगर कहीं पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, और थैंक यू अमीश, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।